کہانی کی شروعات ریس نامی ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی ریس خود کو ایک ایسے کمرے میں پاتی ہے جہاں دیواروں کے ساتھ بہت سے ٹیلی فون لگے تھے۔ سامنے ہی ایک کالے رنگ کا ٹیلی فون تھا جس پر ایک چٹھی چپکائی گئی تھی۔ اسی چٹھی پر ایک نمبر تھا۔ اچانک سے وہی ٹیلی فون بجنے لگا۔ جیسے ہی ریس اسے اٹھاتی ہے، دوسری طرف سے ایک ریکارڈڈ آواز کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، تمہیں رائل فلش کیا جائے گا۔ یہ بات ریس کو سمجھ نہیں آتی۔ نوٹ پر جو نمبر تھا وہ اسے ڈائل کرنے لگی۔ یہ کرتے سمے ہی سارے ٹیلی فون بجنے لگے۔ ریس چیک کرتی ہے تو سبھی میں وہی آواز آ رہی تھی کہ تمہیں رائل فلش کیا جائے گا۔ اچانک ریسیور سے پانی بہنا شروع، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بند کمرہ جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا اب پوری طرح پانی سے بھرنے لگا۔ ریس گھبرا جاتی ہے۔ وہ سیلنگ کی اور دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک ٹوائلٹ لگایا گیا تھا۔ ریس اندازہ لگاتی ہے کہ اگر وہ اوپر تک پہنچ سکے اور جیسے ٹوائلٹ کو فلش کیا جاتا ہے ایسا کیا جائے تو شاید یہ پانی بھی باہر چلا جائے گا۔ ریس ان ٹیلی فونز کی مدد سے اوپر چڑھتی ہے۔ ٹوائلٹ تک تو وہ پہنچ جاتی ہے مگر وہاں اسے ہینڈل نہیں ملتا۔ اس کمرے میں پانی کافی بھر چکا تھا۔ ریس کو لگا جلدی وہ مرنے والی ہے، مگر وہ خود کو شانت کرتی ہے اور تب اسے نمبر یاد آتا ہے جو سب سے شروع میں اسے ملا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ نیچے جاتی ہے اور ایک ٹیلی فون پر وہی نمبر ڈائل کرتی ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے اور اندر ہی ایک ہینڈل تھا۔ اس ہینڈل کو لے کر ریس ٹوائلٹ میں لگاتی ہے اور ایسے کرتے ہی پانی روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ ریس کی جان بچ گئی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد ہی ساری کہانی سامنے آتی ہے کہ اصل میں ریس کہاں تھی۔ وہ سیمولیشن میں ہے، ایک کمپیوٹر گیم، اور اس سمے وہ ایک ہائی ٹیک گیمنگ سینٹر میں تھی جہاں وی آر کی مدد سے لوگ اس طرح کے عجیب و غریب سیمولیشنز میں گیم کھیلتے رہتے تھے۔ گیم کھیلنے کے بعد ریس واپس سے گھر آتی ہے۔ ہم آڈینس جان پاتے ہیں کہ ریس اصل میں اپنے پتا کے ساتھ رہتی ہے۔ ریس چھوٹی تھی تبھی اس کی ماں گزر گئی۔ پتا کا نام کرس ہے جو کہ لاسٹ والا چارلی ہے۔ خیر شام کو دونوں ایک ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ یہاں تک تو سب اچھا چل رہا تھا۔ اسی رات ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے جب پورے علاقے کی بجلی چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ انٹرنیٹ بھی بند۔ پورے شہر میں اندھیرا چھا گیا۔ چارلی اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ یہ عام بات ہے، وہ جلدی سے ٹھیک کر لیں گے۔ نیٹ ورک بھی جا چکا تھا۔ ریس دیکھتی ہے کہ اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کے کمپیوٹر میں بھی آگ لگی ہے جسے وہ بعد میں بجھا دیتی ہے، مگر اب اس کا کمپیوٹر پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا تھا۔ بعد میں چارلی ایک لینٹرن کو جلاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ شاید یہ ایک اچھا موقع ہے خود کو سیل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی سے الگ کرنے کا۔ چارلی اسے اپنے پرانے فوٹوز دکھاتا ہے جب اس کی پتنی یعنی کہ ریس کی ماں زندہ تھی۔ دونوں ایک اچھا ٹائم گزارتے ہیں اور کاؤچ پر ہی سو جاتے ہیں۔ آدھی رات کو ریس کی آنکھ کھلتی ہے۔ ان کے ویئر ہاؤس سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ ریس اپنے پتا کو نہیں جگاتی اور لینٹرن لے کے وہ خود دیکھنے جاتی ہے۔ وہیں پر ریس کو ایک کتاب ملتی ہے جس کا نام ریڈیو فلیش تھا۔ یہ ویئر ہاؤس اصل میں ریس کے دادا جی کا تھا جس کا نام فرینک ہے، مگر وہ اب یہاں نہیں رہتے۔ وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، مگر اب وہ یہاں سے دور جا چکے ہیں۔ وہ اوپر پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ وہ ایک طرح کے سائنٹسٹ بھی تھے جنہوں نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز جیسی چیزوں پر کافی ریسرچ کی تھی۔ حال ہی میں جو حادثہ ہوا، مطلب پاور کا بند ہو جانا، تو ریس آس پاس دیکھنے لگی، شاید وہ جان سکے اس سب کا کارن کیا ہے۔ سامنے ہی ایک میز تھا جس پر کچھ سامان پڑا تھا، تو اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا۔ کپڑے کو ہٹانے کے بعد اسے ایک پرانا ریڈیو نظر آتا ہے۔ وہاں پہاڑوں میں نیٹ ورک نہیں ہوتا، تو اگر کسی کو فرینک سے سمپرک کرنا ہو وہ ریڈیو کے ذریعے کر سکتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ اس بابا کو لوگ بھول چکے ہوں گے کیونکہ ریس تو وی آر گیمز میں بزی ہے اور باقی لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہیں۔ اب جا کے انہیں یاد آیا ہوگا کہ ان کے تو ایک دادا جی بھی ہے۔ خیر ایک بیٹری بیک اپ کی مدد سے ریس ریڈیو کو آن کرتی ہے۔ فرینک نے جانے سے پہلے ہی ریڈیو پر اپنی فریکوینسی سیٹ کی ہوئی تھی، اس لیے کچھ سیکنڈز کے بعد ہی ریس کو اپنے دادا جی کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر ریس کافی خوش تھی۔ خیر فرینک کو بھی اس حادثے کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ ریس سے کہتے ہیں کہ یہ EMP اصل میں انت کی شروعات ہے۔ یہ آج سے کئی سال پہلے میں نے پریڈکٹ کی تھی۔ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔
फ्रैंक आगे बताता है कि ये एक एएमपी अटैक है जो किसी की तरफ से है। मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, मगर आगे ये खतरनाक होने वाला है। वो रीस से कहते हैं कि तुम्हें और चार्ली को यहाँ पहाड़ों पर आना होगा। मेरे पास यहाँ सब कुछ है, तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहोगे। वो रीस को एक मैप भी देता है और एक रेडियो का भी बताता है जो सिर्फ 5 मील के दायरे में काम करेगा। अब रीस का भी जल्दी इन बातों पर विश्वास कर लेती है। बैटरी में पावर बहुत कम बची थी, इसलिए फ्रैंक सुबह चार्ली से भी बात करना चाहता था। इसके बाद संपर्क टूट जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि फ्रैंक ने बहुत पहले ही इस सब की तैयारी कर ली थी। सुबह होती है तो रीस चार्ली को जगाती है, इस बारे में बात करती है कि मेरा दादाजी से संपर्क हुआ था, वो पहाड़ों पर आने के लिए कह रहे हैं। शुरू में तो चार्ली रीस से कहता है कि देखो, हम फ्रैंक के पास नहीं जाने वाले, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसने तुम्हें से ही डरा दिया। मगर रीस जिद करती है कि आप उनसे एक बार बात तो कर ले। अब रीस के जिद करने पर चार्ली फ्रैंक से रेडियो पर बात करता है। फ्रैंक चार्ली को समझाता है कि इस ईएमपी अटैक से हालात और बिगड़ जाएंगे। कुछ ही दिनों में यहाँ डर फैल जाएगा, सप्लाईज खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे को लूटने और मारने पर उतर आएंगे। ये सब 3 दिनों के अंदर ही होने वाला है। रीस की जान प्यारी है तो मेरी बात मानो, सामान पैक करो और पहाड़ों में आ जाओ। यहाँ हमें सुरक्षा मिल सकती है, यहाँ मेरे पास सब कुछ है। चार्ली को जब अंदाजा हो जाता है कि फ्रैंक शायद सही कह रहा है, अगर हालात खराब ना भी हुए तो ये लोग वापस आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर फ्रैंक आबादी से बहुत दूर रहता था, इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। चार्ली और रीस कुछ जरूरी सामान पैक करके अपने कार में बैठ जाते हैं और जो मैप फ्रैंक ने रीस को दिया था उसी को फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़ने वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों और पुलिस के बीच बहस छिड़ जाती है, खासकर पावर शॉर्टेज को लेकर। सरकार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि शायद कोई देश इन पर हमला करने वाला है। चार्ली और रीस को राशन चाहिए था तो वो एक नजदीकी मार्केट में जाते हैं, मगर वहाँ पहले से ही लोगों ने लूट मचा रखी थी। जैसे फ्रैंक ने प्रेडिक्ट किया था सब वैसे ही हो रहा था और ये तो बस पहला ही दिन था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब काफी लोग शहर छोड़कर भी जा रहे थे। रोड ब्लॉक था क्योंकि हाईवे पर ही एक एक्सीडेंट हुआ था, मगर लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए एक पिकअप उल्टी गाड़ी को रास्ते से हटा देती है। रास्ता खुल जाता है और गाड़ियां वहां से निकलने लगी। शाम हो चुकी थी, रीस को काफी नींद आई थी, इसलिए वो सो गई। मगर जब वो उठती है देखती है कि चार्ली गलत रास्ते पर जा रहा है क्योंकि उन्होंने इंटरसेक्शन को मिस कर दिया था। वो चार्ली को बताती है कि हम गलत रास्ते पर हैं। इन्हीं बातों के दौरान चार्ली का रोड पर से ध्यान हट जाता है। कार एक खाई में गिर गई और दोनों बेहोश। सुबह रीस की आंख खुलती है, देखती है कि उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई है। उसके पिता जिंदा है, बस थोड़े जख्मी हो चुके हैं। अपनी कार वहीं छोड़कर आगे का सफर ये लोग पैदल ही तय करने लगे। दूसरी तरफ फ्रैंक दिखाया जाता है जो इन लोगों के इंतजार में बैठा था। उसके हिसाब से उन्हें आज सुबह पहुंच जाना चाहिए था, मगर वो लोग अभी तक आए नहीं, इसलिए फ्रैंक को चिंता होने लगी। खैर रीस और चार्ली पैदल ही सफर कर रहे थे, मगर चार्ली को चलने में काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए रीस आराम करने का मशवरा देती है। वो पास ही एक झरने से पानी भरते हैं। तभी रीस को पता चलता है कि उसके पिता को खतरनाक चोटें आई है, वो भी उसी कार एक्सीडेंट की वजह से, मगर अभी तक उसने ये बात छुपा के रखी थी। उसके रिब्स टूट चुके थे और हाथ भी जख्मी हो चुका था। रीस को अपने पिता की फिक्र होने लगी, इसलिए वो उसकी हाथ की पट्टी करती है। कुछ देर आराम करने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, मगर चार्ली चल नहीं पा रहा था और एक जगह वो गिर जाता है। बेहोश होने से पहले वो रीस से कहता है कि तुम्हें मदद लानी होगी। रीस काफी घबरा जाती है। अपने पिता को वहीं छोड़कर वो आसपास मदद ढूंढने लगी। काफी चलने के बाद खुशकिस्मती से रीस को एक फार्म हाउस नजर आता है जहाँ एक बुजुर्ग रहता था। रीस उससे मदद मांगती है। अब चार्ली बेहोश हो चुका था क्योंकि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। खैर वो बुजुर्ग आदमी जिसका नाम फिन था, उसे यहाँ के रास्तों के बारे में पता था। फिन अपनी गाड़ी लेता है और दोनों चार्ली को बचाने निकल जाते हैं। चार्ली को घर लाया जाता है, मगर वो होश में नहीं आता। अब यहाँ से कोई कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि सब डाउन था। हॉस्पिटल काफी दूर था और शाम को ही चार्ली मर जाता है।
रीस का दिल टूट गया। वो जान बचाने के लिए निकले थे और चार्ली ने अपनी जान ही गंवा दी। वो बहुत रोती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अगली सुबह फिन और रीस चार्ली को दफना देते हैं। फिन को भी काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो रीस की मदद करना चाहते थे। वो अपनी गाड़ी निकालते हैं और रीस को उसके दादाजी के पास ले जाना चाहते थे। रीस अब काफी उदास रहने लगी थी। दूसरी तरफ फ्रैंक इंतजार करते करते थक चुका था, इसलिए वो अपने ठिकाने से निकलता है और इन लोगों की तलाश शुरू करता है। रास्ते में उसे इनकी कार भी मिल जाती है जो एक पेड़ से टकराई थी। वहाँ उसे कपड़ा मिलता है जिस पर खून लगा था, तो फ्रैंक को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फ्रैंक उसी रास्ते पर चलता है। फिर वो उसी घर में पहुंच जाता है जहां रीस मदद लेने आई थी, यानी फिन का घर। और कल रात यहां चार्ली की मौत भी हुई थी। फ्रैंक घर चेक करता है मगर वहां कोई नहीं था, इसलिए वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। काउच पर उसे खून मिलता है। उसका शक और बढ़ गया। फिर वो एक तस्वीर को देखता है। जब वो बाहर बैकयार्ड में आता है तो उसे वो कब्र नजर आती है। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब चार्ली नहीं रहा, मगर वो इस पर समय बर्बाद नहीं करता और रीस को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जब रीस और फिन सड़क पर जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी उनसे मदद मांगता है। फिन को अंदाजा था कि शायद ये कोई चाल हो सकती है, इसलिए वो रीस को पीछे छुपा देता है। वो आदमी पहले तो फिन से मदद मांगता है और फिर उसे शूट कर देता है। उसकी लाश गाड़ी से नीचे फेंक देता है। ट्रेलर को वो एक कार रिपेयर शॉप पर ले जाता है। पीछे बेचारी रीस छुपी हुई थी, ये सब देख रही थी। उसे काफी डर लग रहा था मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो कोई मौका तलाश कर रही थी कि वो इस गाड़ी से भाग जाए। वो आदमी ट्रेलर को रोकता है और उससे फ्यूल निकालने लगा। अब इतने में वहाँ गली एक और आदमी आता है जो एक शिकारी था। वो बिना सोचे ही उस लुटेरे को मार देता है। मौका समझकर रीस ट्रेलर से कूद जाती है और जंगल की तरफ भागने लगी। शिकारी ने उसे भागते हुए देख लिया था, इसलिए वो जल्दी उसे पकड़ लेता है और उसे एक बैग में डालकर अपने ठिकाने पर ले आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बुजुर्ग औरत थी जो थोड़ी सी पागल भी थी। ये शिकारी इसी औरत का बेटा है। ये जंगल में रहते हैं। ये बुजुर्ग औरत रीस से कहती है कि तुम मेरे इलाके में बिना इजाजत के आई हो, इसलिए तुम्हें अब कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ फ्रैंक को फिन की लाश सड़क पर मिल जाती है क्योंकि उसने इसकी फोटो पहले ही देख ली थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि रीस अब बड़े खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और उसकी तलाश शुरू करता है। शाम को वो औरत रीस को अपने परिवार के बारे में बताती है कि बिली मेरा बेटा है और क्वीन मेरा पोता। क्वीन एक शर्मीला लड़का है जो बस अपने कमरे में रहता है, और बिली जो कि उसे बेवजह ही मारता रहता है। ये एक सन की परिवार था जो जंगल में रहता था और अब रीस इनके कब्जे में थी। वो औरत कहती है कि मैं बिली को बिला वजह ही मारती रहती थी बचपन में, इसलिए वो ऐसा बना। रीस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हाल ही में मेरे पिता की मौत हो गई है और मुझे अपने दादाजी के पास जाना है। वो पहाड़ों में रहते हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो बुजुर्ग औरत कोई दया नहीं दिखाती और कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वो रीस को एटिक में रात बिताने पर मजबूर करती है। फिर रीस कुछ नहीं कहती और एटिक में चली जाती है, मगर उसका प्लान आधी रात में यहाँ से भागने का था। जैसे ही सब सो जाते हैं, रीस चुपके से एटिक से निकलती है। उस औरत की चाबियां भी चुरा लेती है, यहाँ तक कि दरवाजे को भी खोल देती है और घर से भी निकल जाती है। मगर वो औरत काफी चालाक थी। उसने रीस को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपने शिकारी बेटे को उसके पीछे लगा देती है। रीस ज्यादा दूर गई भी नहीं थी कि वो शिकारी दोबारा उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब रीस की आंख खुलती है तो उसे एक बैग में बंद किया गया था। उसके हाथ पैर बांधे थे। वो ध्यान देती है तो असल में बिली नामी उस शिकारी ने उसे पैर से बांधा था। और तभी एक भालू आता है। वो रीस को खाने वाला था, मगर बिली उस भालू को मार देता है। उसने रीस को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। भालू को मारने के बाद बिली रीस को घर में घसीट कर ले आता है, मगर इस बार वो उसे बांधे रखते ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। बिली और उसकी माँ एक छोटे कमरे में रीस को एक हफ्ते के लिए कैद रखते हैं। एक हफ्ते के बाद जब उसे निकाल दिया जाता है तो वो औरत यानी बिली की माँ उसे एक ऑफर करती है कि रीस यहीं पर रहे और उसके बेटे बिली की शादी यानी कि पत्नी बन जाए।
मगर रीस गुस्से में कहती है कि उस पागल की पत्नी बनने से अच्छा कि मैं उस छोटे कमरे में ही मर जाऊं। वो औरत रीस को दोबारा उसी कमरे में कैद कर देती है। हालांकि रीस के हाथ पैर बांध दिए गए थे, मगर अब वो और इस नर्क में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए रात को वो किसी तरह अपने हाथ छुड़ाती है और इस जगह से भागने की कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा नहीं खोल पाती। तभी क्वीन नामी वो शर्मीला लड़का जो बिली का बेटा था वो रीस के पास आता है। असल में वो इन लोगों की तरह नहीं था, वो रीस की मदद करना चाहता था। वो खुद भी यहाँ से भागना चाहता था, तो वो दरवाजा खोलता है और दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। क्वीन इस जगह के बारे में जानता था, इसलिए वो पूरी रात भागते रहते हैं। सुबह जब बिली को पता चलता है तो वो भी इनका पीछा करता है। वो एक शिकारी था, तो उसे इन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो भी उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां से क्वीन और रीस गुजरने वाले थे। दूसरी तरफ क्वीन और रीस को भूख लगी थी, तो वो बेरीज खाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद जब ये आगे बढ़ रहे थे तो ये एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। क्वीन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने वाला था, मगर रीस उसे बचा लेती है। अब इन दोनों ने बिली को आते देख लिया था, इसलिए ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। एक गहरी काई रास्ते में आती है, एक पेड़ जो कि पुल की तरह काम करता था। ये दोनों उसे पार कर लेते हैं। इतने में बिली भी इन तक पहुंच चुका था। वो गोली भी चलाता है, मगर दोनों किसी तरह बच जाते हैं। चलते चलते एक झील तक पहुंच गए ये दोनों। बिली करीब आ चुका था, इसलिए दोनों उससे पानी में छुप गए। उसके जाते ही दोनों बाहर निकलते हैं और बिली से अब उसे डायरेक्शन में भागने लगे, मगर वो एक चालाक शिकारी था, इसलिए उसे शक हो जाता है। ये दोनों उससे छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो क्वीन को देख लेता है। क्वीन उससे लड़ता है। इस हाथापाई में बिली की बंदूक गिर जाती है। वो रीस के सामने ही थी, मगर रीस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बंदूक उठा सके और बिली को शूट करे। हालांकि वो क्वीन को मारने वाला था, मगर अंत में वो बंदूक उठा ही लेती है। इससे पहले कि बिली क्वीन को मार डालता, एक गोली चलती है और बिली वहीं पर ढेर हो जाता है। मगर असल में ये गोली रीस ने नहीं चलाई थी, बल्कि उसके दादाजी ने चलाई थी, जो इन्हें ढूंढने में कामयाब हो चुका था। रीस उससे गले मिलती है और अब कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्वीन, रीस और उसके दादाजी फ्रैंक पहाड़ों में रहने लगे थे। दुनिया अभी भी उस एमपी झटके का शिकार थी। बड़े बड़े शहरों में तो बुरा हाल था। अंत में जब क्वीन रीस के आईपैड पर कुछ देख रहा था तो उस पर बहुत से मैसेजेस आते हैं, जिसका मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो चुका है। मगर अब रीस को यहाँ रहने की आदत हो गई। आगे वो अपनी दुनिया में जाएगी या नहीं कह नहीं सकते। मगर यहीं पर इस छोटी सी कहानी का अंत।